Hello, my dear students. Welcome to our free dental guide campaign. On behalf of AI Medical Dental Academy, we provide you free education for passing dental exams. Today's lecture is about orthodontics. How much or what the topics you have to prepare for your final year exams, how you have to go with the orthodontic clinical aspect, what will be your approach in writing theory exam, how will be approaching your Viva in practical, what will be your preparation in your NEET MBS preparation or any interviews after passing BDS? We will discuss in today's lecture. So today's lecture is just an introduction, but what I mean is you have to go with introduction part also. First of all, we have to discuss development of dentition. Okay? You can understand that before eruption, we have pre-emergent eruption. Okay, and afterwards we have post-emergent eruption. Okay, what is this pre-emergent eruption? It is that bone is slightly resolved and primary teeth spurt is formed, or primary teeth gets an opportunity to develop. This helps in the guidance of tooth. Okay, and post-emergent, after eruption or after emerging from the gums, what happens? There will be occlusion equilibrium. Our tooth should come into proper occlusion. So this is not important from theory aspect of view, but you should know that based on eruption we have two types of classification. Now in pre-emergent eruption, they are the rate limiting factor. Okay, tooth has to be guided into the path created by resorption of bone. For example, this is the arch or this is the bone. So bone has to resorb here in this area. Then only tooth can come out of this side, or it gets the guidance or direction for tooth eruption. Okay. Now post-emergent eruption. Okay, it is a stage where gingiva has been penetrated. Okay, it has come out of the gingiva in the oral cavity. You can see some portion of tooth, and after that, it has to reach up to its occlusion. So, in post-emergent occlusion, we have that tooth should come into proper occlusion. Okay, this is the only difference. Now, stages of tooth development. Our Nolla, the scientist, has given various stages. First of all, there is presence of crypt, then initial calcification, slight calcified mass will be there. Then crown will develop initially, then crown will develop more, two-third, then crown will be completely developed. Okay, from acted up. Now, after crown is formed, tooth begins to erupt and enters the oral cavity. After that, one-third of root is formed, then two-thirds of the root is formed, and then merely all root as well as crown is formed. Okay. Now, in cases of stages of occlusal development, we have predental. Okay. If you want to go with occlusion, occlusion means our upper and lower teeth are in proper relation with each other. So this is called occlusion. Now predental. Okay. Before teeth are there, what is the occlusion, or how does the patient chew? They go with gum pads. Okay. They have various relationships. For example, upper gum is there, lower gum is parallel to this, then upper gum is there, lower gum is distal to this. Okay, this is mesial side, this is distal side. Okay, how? We imagine that this is nose and this is eye. Okay, this way
you can determine the mesial and distal. Now, in case of deciduous dentition, okay, we have spacing is there between the anterior teeth. There are primate spaces. Then deep overbite. What is overbite? ऊपर के जो दांत है ना, ठीक है, ये ऊपर का दांत है और नीचे का दांत होगा, ठीक है। तो ये जो रिलेशन होगा, ऊपर का वर्टिकल जो ओवरलैप करेगा नीचे के दांत को, उसको बोलते हैं ओवरबाइट, ठीक है। वो कितना तक वो ओवरलैप करता है। और फिर डीप ओवरबाइट, ठीक है। फिर आता है शैलो ओवरबाइट, ये थोड़ी डीप जैसी है। शैलो का मतलब ऊपर का दांत होगा वो यहाँ होगा और नीचे का दांत यहाँ होगा, तो ओवरबाइट रहेगा ही नहीं, ठीक है। फिर टर्मिनल प्लेन रिलेशन। टर्मिनल प्लेन रिलेशन का मतलब क्या है? जो पीछे का दांत है डेसिडियस टूथ में, जो सेकेंड मोलर होता है, प्राइमरी सेकेंड मोलर, ठीक है। आपको तो वो पता ही होगा कितने डेसिडियस टूथ होते हैं, कितने परमानेंट हो गए, ठीक है। तो ए बी सी डी और ई, फिर यहाँ भी ए डी, ठीक है। ऐसे यहाँ भी ई होगा, यहाँ भी ई होगा, ऐसे करके ऊपर और नीचे के दांत टोटल 20 होंगे डेसिडियस डेंटिशन। तो जो ये लास्ट वाले टूथ है ई और ई, ठीक है, उसका रिलेशन कैसा है मैं टीथ ड्रॉ करके बता रहा हूं। ये टीथ है ऊपर का और नीचे का भी ये दांत है। तो ये आप देख रहे हो कि एक ही लाइन में एंड हो रहे हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनल प्लेन रिलेशन, फ्लश टर्मिनल प्लेन, ये एक ही लाइन में है, ठीक है। फिर दूसरा ऐसा भी आ सकता है, ये ऊपर का दांत है, नीचे का दांत थोड़े आगे है, ठीक है। तो ये बोलेंगे हम मिजियल शिफ्ट, क्योंकि ये दांत थोड़ा मिजियल डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, इस तरफ शिफ्ट हुआ, ये मिजियल साइड है, ये डिस्टल साइड, ठीक है। और अगर ऊपर का दांत है ये और नीचे का दांत पीछे है, दोनों ई है, दोनों प्राइमरी सेकेंड मोलर्स है, तो इसको बोलते हैं डिस्टल स्टेप। नीचे का दांत ऊपर के हिसाब से डिस्टल है, ठीक है। फिर डेसिडियस डेंटिशन में क्या क्या आता है? और वर्टिकल इंक्लिनेशन ऑफ लोअर इंसाइजर्स, ठीक है। लोअर के दांत है वो कितने वर्टिकली इंक्लाइंड है, ऐसे है, सीधे है, ऐसे है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी डेसिडियस डेंटिशन में वेराइटी आती है। अब आता है मिक्स्ड डेंटिशन, उसको हम क्या बोलते हैं? थोड़े परमानेंट भी है, थोड़े डेसिडियस भी है। आधे परमानेंट या मतलब थोड़े थोड़े, आधे आधे नहीं। some tooth are permanent and some teeth are deciduous. In mixed dentition we can see that permanent molars, ठीक है, परमानेंट मोलार्स को क्या बोलते हैं? 6, फर्स्ट मोलार को 6, सेकेंड को 7 और थर्ड को 8, ठीक है। यहाँ पे परमानेंट फर्स्ट मोलार इरप्ट होगा मिक्स्ड डेंटिशन में, ठीक है। फिर जो प्राइमरी इंसाइजर्स होंगे आगे के दांत ए और ए, उससे रिप्लेस करेंगे 1 और 1 से, बी को रिप्लेस करेंगे 2 से, ठीक है। जो डेसिडियस होता है ना उसको हम ए बी सी डी ई बोलते हैं, परमानेंट टूथ होता है उसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा नंबरिंग देते हैं, ठीक है। तो जब ये मिक्स डेंटिशन आएगा ना
उसमें क्या क्या आएगा, इंसाइजर लायबिलिटी। तो इंसाइजर लायबिलिटी क्या है, ऊपर के जो डेसिडियस वाले टीथ होंगे ना वो छोटे होंगे, लेकिन जो परमानेंट आएंगे वो बड़े होंगे। तो ये जो स्पेस डिफरेंस आ रहा है उसको हम बोलेंगे इंसाइजर लायबिलिटी। तो उसको, इसकी क्या जरूरत है, ठीक है। तो ये कैसे ओवरकम होता है, बड़े दांत आएंगे परमानेंट, लेकिन पहले तो स्पेस कम ही है, तो इसके लिए प्राइमेट स्पेस होती है, ठीक है। प्राइमेट स्पेस होती है, ठीक है। वो कहाँ पे होती है, ऊपर के दांत में बी और सी के बीच में होती है, इंसाइजर और कैनाइन के बीच, और लोअर में डेसिडुअस कैनाइन और परमानेंट फर्स्ट मोलर के बीच होती है, ठीक है। तो वो स्पेस जो होगी ना, वो नए दांत जब आएंगे बड़े वाले, तो वो स्पेस को एकोमोडेट कर लेंगे, ठीक है। नीचे के दांत चले जाएंगे और एक्स्ट्रा थोड़ी स्पेस है प्राइमेट वाली, उस जगह में नए दांत आ जाएंगे, ठीक है। तो उसको जो डिफरेंस होता है, नए दांत, परमानेंट इंसाइजर और रेसिड्यूस इंसाइजर, वो दोनों डिफरेंस को हम बोलेंगे इंसाइजर लायबिलिटी। वो लायबिलिटी कैसे ओवरकम करेंगे, वो हम ओवरकम करेंगे कैसे, वो प्राइमेट स्पेस और टूथ को, दोनों को स्पेस मिलाकर आप देखोगे तो परमानेंट की स्पेस आपको मिल जाएगी। फिर अगली डकलिंग स्टेज, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, थोड़ा मैं समझा देता हूं। जैसे कि ये आपका सेंट्रल इंसाइजर है, ठीक है, थोड़ा गलत ड्राइंग किया, ये लेटरल है, ठीक है। ये वन और टू और टू, यहाँ पे स्पेस होगी नहीं पहले बीच में, ठीक है। थोड़ा अच्छी तरह से ड्रॉ करता हूं। A1 A1, ठीक है। ये टू और टू, जब कैनाइन इरप्ट होगा ना, ठीक है, तब ये इसको पुश करेगा रूट में से, यहां से यहां। तो क्या होगा, जो इंसाइडर्स होंगे ना उसके बीच में जगह हो जाएगी, और लिटिल इंसाइडर के बीच में भी जगह हो जाएगी, ठीक है। आगे के दो दांत होंगे इंसाइडर, मिड लाइन में से टूथ फ्लेयर हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आ रहा है कैनाइन का, इरप्टिंग फोर्स का। वो स्टेज को अगली डकलिंग स्टेज बोलते हैं, ठीक है। अगली डकलिंग स्टेज, उसका दूसरा नाम है ब्रॉड बेंट फॉर फेनोमेनन, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं लिखना है, आपको बोलना है कि ये स्पेस है, दोनों इंसाइजर्स के बीच में है, टूथ फ्लेयर हो जाएंगे, रूट्स क्राउन डाइवर्ज हो जाएंगे, रूट्स नजदीक आ जाएंगे, कन्वर्ज हो जाएंगे। इसका रीजन क्या है, तो कैनाइन जो है ना वो एपिकली फोर्स देता है रूट को, इसलिए वो कन्वर्ज होते हैं। फिर वो सेल्फ लिमिटिंग है, वो अपने हिसाब से एज के साथ ठीक हो जाएगा, ऐसा डिसीज है या ऐसा फेनोमेनन है। अर्ली मिजियल शिफ्ट, ठीक है। तो अर्ली मिजियल शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, कि जब टीथ आएंगे ना, तो जो दांत है ना पीछे वाले मोलर्स, वो नीचे का फ्लश टर्मिनल प्लेन में था। तो ये जब टीथ इरप्ट होंगे यहाँ पे पीछे से, तो इसको इस तरफ फोर्स करेंगे मिजियल की साइड, उसको बोलते हैं अर्ली मिजियल शिफ्ट। फिर होता है रिप्लेसमेंट ऑफ सी डी ई, ठीक है। तो ये क्या है, कि जो डेसिडियस टूथ है सी डी और ई, उसकी जगह 3
4 और 5 आएंगे। तो यहाँ पे उल्टा है, सीडी की स्पेस ज्यादा है, 3 4 5 की स्पेस कम है। तो स्पेस ना रह जाए इसलिए क्या होगा, जो मोलर होगा यहाँ पे 6 वाला, वो इस साइड थोड़ा शिफ्ट होगा, उसको बोलते हैं लेट मिसियल शिफ्ट। और जो स्पेस होगी ना, लीवे स्पेस, जो डिफरेंस होगा वो भी ओवरकम हो जाएगा। और टर्मिनल प्लेन वो भी और कम हो जाएगा, 6 के बीच में जो प्लेन था ई और ई के बीच में, वो भी प्लेन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ओवरव्यू था। अब ये चार्ट आप ध्यान से पढ़ो 2 मिनट, कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, हम आगे बढ़ने से पहले आपका डाउट सॉल्व कर देंगे। फिर से समझा देते आपको। पहले तो दांत का ओक्लूजन से पहले गम पैड्स के कारण ओक्लूजन रहेगा, उसके बीच में तो अलग अलग टाइप की रिलेशन होती है, 1 2 3 टाइप की। फिर आता है डेसिडियस डेंटिशन। लिवे स्पेस, लिवे स्पेस क्या है, सी, सी मतलब डेसिडियस कैनाइन, डी मतलब डेसिडियस फर्स्ट मोलर, ई मतलब डेसिडियस सेकेंड मोलर। ठीक है, तो उसका जो अब आप स्केल से मेजरमेंट करोगे, सी का मिजियोडिस्टल लेंथ, डी का मिजियोडिस्टल और ई, उसको आप स्केल से मेजर करोगे तो कुछ आएगा रिजल्ट। और जो दांत आने वाले हैं वो जगह पर 3 4 5 में। ठीक है, तो 3 4 5 परमानेंट होगा ना, उसका मेजरमेंट करोगे, और डेसिडियस वाले सी डी ई का, उसमें बहुत सारा डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो सी डी की स्पेस ज्यादा होगी और 3 4 5 की स्पेस कम होगी। तो अगर ये स्पेस खुली रहेगी तो ऑक्लूजन ठीक से नहीं हो पाएगा, पेशेंट के दांतों में बहुत स्पेस रह जाएगी। तो ये जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं लीवे स्पेस। लीवे स्पेस और कुछ नहीं, सी डी ई और 3 4 5। 3 4 5 क्या है, परमानेंट कैनाइन, परमानेंट फर्स्ट मोलर और परमानेंट सेकेंड मोलर। उसके आप डायमेंशन लोगे स्केल से, ठीक है, तो वो थोड़ा कम रहेगा। लीवे स्पेस है ना, मैं अगर भूला नहीं हूं ना, तो अप्रोक्सीमेटली 1.9 mm होती है मैक्सिला में, अगर भूला नहीं हूं तो इतना अप्रोक्सीमेटली होता है। ठीक है, 1.9 mm जितना, दोनों में थोड़ा डिफरेंस। ठीक है, अब लीवे स्पेस थी, मतलब डिफरेंस था, उसको ओवरकम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है, स्पेस ज्यादा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5। तो ये थोड़ी स्पेस बची ना, तो वो जो 6 आएगा ना, वो थोड़ा मिजियल शिफ्ट हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं लेट मिजियल शिफ्ट। ठीक है, 6 थोड़ा मिजियली शिफ्ट होगा। अब प्रीडेंटल में क्या क्या आता है, तो ऐसे गम पैड्स आते हैं। ठीक है, गम पैड से हम, बच्चा जो होता है वो फीडिंग भी करता है। ठीक है, ये कोई अच्छी क्वेश्चन तो आ नहीं सकता है, आ गया तो ये थोड़ा इजी है। ठीक है, ड्रॉ करके बता देना है और थोड़ा समझा देना है। ठीक है, ऐसा रिलेशन होता है ऑक्लूजन में। फिर आता है डेसिडियस। ठीक है, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा ना, वो सभी अब डीप में आएगा। सीक्वेंस ऑफ इरप्शन ऑफ प्राइमरी टूथ। ठीक है, प्राइमरी टूथ कौन से सीक्वेंस में आते हैं, तो पहले ए आता है, मतलब सेंट्रल इंसाइजर, फिर लेटरल इंसाइजर, फिर आता है फर्स्ट प्रीमोलर। ठीक है, फर्स्ट मोलर, डी मतलब प्राइमरी फर्स्ट मोलर। फिर आता है प्राइमरी कैनाइन,
और प्राइमरी सेकेंड मोलर। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। और 6 महीने जब होते हैं बच्चे के, तब टीथ इरप्ट होना चालू होता है। फिर क्रोनोलॉजी प्राइमरी डेंटिशन की। ठीक है, लोअर सेंट्रल इंसाइजर होगा ना, वो 7 मंथ्स में बाहर आएगा। अपर सेंट्रल इंसाइजर होगा वो 9 मंथ्स में आएगा। दोनों लेटरल इंसाइजर्स 11 महीने पर आएगा। फर्स्ट मोलर्स 15 पर, कैनाइन्स 18 और सेकेंड मोलर्स 26। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल जब होंगे ना, तब जाके सारे के सारे दांत आ जाएंगे। ठीक है, अब जो भी आपने डाउट पूछा था ना, वो सब डिस्कस करेंगे। फीचर्स ऑफ डेसिडियस डेंटिशन। ठीक है, तो जो डेसिडियस टूथ होते हैं ना, उसके बीच में स्पेस रहेगी। ठीक है, आप कोई बच्चे को देखोगे ना, तो उसके दांत हमारे जैसे कांटेक्ट में नहीं होंगे, कुछ दांत के बीच थोड़ी थोड़ी स्पेस रहेगी, इसलिए इसको स्पेस्ड डेंटिशन भी बोलते हैं और ओपन डेंटिशन भी बोलते हैं। अब दो टाइप की स्पेस आती है। एक आती है डेवलपमेंटल स्पेस। ठीक है, वो जब ग्रोथ होता है तब वो रह जाता है। और दूसरा आता है प्राइमेट स्पेस। अभी जो आप लिवियर स्पेस का डाउट था, प्राइमेट स्पेस भी बता देते हैं, ये आएगा अभी यहाँ पे। दूसरा नाम है सिमियन स्पेस और एंथ्रोपॉइड स्पेस और बॉम्ब स्पेस, 3 नाम है। मैक्सिला में कहाँ पे होगा, तो बी और सी के बीच होगा। बिटवीन डेसिडियस लेटरल इंसाइजर मतलब बी, डेसिडियस फर्स्ट इंसाइजर मतलब ए। तो यहाँ पे बी और सी के बीच में होगा मैक्सिलरी में, और मैंडिबुलर में सी और डी के बीच होगा, डेसिडियस कैनाइन और फर्स्ट मोलर के बीच। ठीक है, तो ये स्पेस जब अर्ली मीजियल शिफ्ट होगी, जब एंटीरियर दांत आएंगे ऊपर के, ए को रिप्लेस करेंगे 1 1 से। ठीक है, ये दांत इसको रिप्लेस करेगा, ये इसको करेगा। जब ये रिप्लेस करेंगे तब ये मीजियल शिफ्ट हो जाएगा, दांत को ऐसे जगह मिल जाएगी, तो ये स्पेस चली जाएगी। ठीक है, तो 1 2 और 3 के बीच स्पेस नहीं रहेगी। फिर आता है क्लोज्ड डेंटिशन और नॉन स्पेस्ड। ठीक है, अगर बच्चों में कोई देखा कि कोई स्पेस ही नहीं, तो ऐसे केस में परमानेंट टीथ को आने की सही तरह से जगह मिलेगी नहीं, और परमानेंट टीथ कभी कभार लिंगुअल साइड हो जाएंगे, उसको बोलते हैं क्राउडिंग। ठीक है, जो आर्च होती है, ये वाली आर्च है, तो इस पर दांत आने चाहिए, लेकिन डेसिडियस टूथ है ना, उसके बीच प्रॉपर स्पेस नहीं है, प्राइमेट और दूसरी स्पेस नहीं है, तो फिर दांत यहाँ लिंगुअली आ जाएंगे। फिर पेशेंट को दिक्कत होगी बोलने में, और उसको एबनॉर्मलिटी फील होगी। जब दांत की जगह नहीं होती और अंदर दांत ग्रो हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्राउडिंग। ठीक है, उसकी जगह नहीं और वहां खड़े रह जाते हैं, क्राउडिंग। डीप बाइट। डीप बाइट का मतलब क्या है, ऊपर और नीचे का जो रिलेशन है, ठीक है, उसका रिलेशन है। ऊपर के दांत ज्यादा ओवरलैप करेंगे नीचे को, उसको बोलते हैं ओवर डीप बाइट। ठीक है, और नॉर्मल करेंगे तो उसको बोलते हैं ठीक से। फिर आता है ओवर बाइट। ठीक है, ओवर बाइट कितनी है, 1 to 2 मिलीमीटर। ठीक है, ओवर बाइट का मतलब पता है ना, यहाँ पे अपर का दांत है और नीचे का दांत यहाँ पे है, तो ऊपर का दांत है ना, नीचे के दांत को ओवरलैप करेगा, उसके ऊपर 2 मिलीमीटर जाएगा, उसको बोलते हैं ओवर बाइट। टर्मिनल प्लेन रिलेशनशिप, मैंने आपको फिर से बताया, ये ऊपर का दांत है, जो लास्ट वाला दांत है ना, ई, और ये नीचे का है। तो आप देखोगे कि ये दोनों एक लाइन में ही है। ठीक है, एक लाइन में,
इसको बोलते हैं फ्लश टर्मिनल प्लेन। ऐसा 76% देखने को मिलता है। फिर मीजियल स्टेप, ये ऊपर का दांत है, नीचे का दांत थोड़ा मीजियल रहेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं मीजियल स्टेप। और ये ऊपर का दांत है, नीचे का दांत थोड़ा पीछे रहेगा, इसको बोलते हैं डिस्टल स्टेप, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टर्मिनल प्लेन रिलेशनशिप। जहां लास्ट होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल प्लेन। और उसके रिलेशनशिप 3 टाइप में क्लासिफिकेशन दिया है, किसने? बॉब ने, ठीक है। अब मिक्स्ड डेंटिशन, ठीक है। मिक्स्ड डेंटिशन का मतलब है 6 से 12 साल। उसमें क्या आएगा? परमानेंट टूथ भी होंगे और डेसिडियस टूथ भी होंगे, ठीक है। उसमें क्या आएगा? इरप्शन होगा मोलर्स का और रिप्लेसमेंट होगा इंसाइजर्स का। उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशनल पीरियड, ठीक है। तो मिक्स्ड डेंटिशन होगा ना, उसका फर्स्ट पीरियड, उसमें क्या होगा? जो 6 होंगे ना वो इरप्ट होंगे, और ए होगा ना वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ए मतलब डेसिडियस सेंट्रल इंसाइजर, बी मतलब डेसिडियस लेटरल इंसाइजर। तो जो दोनों दांत है ना, ए और बी, वो 1 और 2 से रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये पहला स्टेज है मिक्स्ड डेंटिशन का, ठीक है। तो ये ऐसा आप देख सकते हो कि 8 या 9 साल से वो चालू होता है। 6 आ जाता है 6 साल की उम्र में, लेकिन जो इंसाइजर्स रिप्लेस होंगे वो 8 से 9 साल में होंगे। फिर आता है इंटर ट्रांजिशनल पीरियड, ठीक है। तो उसमें कोई चेंजेस होता नहीं है, वही का वही रिलेशनशिप रहता है। फिर तीसरे में जो सी होगा वो 3 से रिप्लेस हो जाएगा, और रेसिडियस मोलर्स डी और ई वो 4 5 से रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं सेकेंड ट्रांजिशनल पीरियड। तो आप नंबर भी याद रख सकते हो, यहाँ पे 6 1 2, यहाँ पे 3 4 5, ठीक है। सेकेंड ट्रांजिशन में 3 4 5, फर्स्ट ट्रांजिशन पीरियड में 6 1 2, ठीक है। तो अगर मिक्स डेंटिशन पीरियड का शॉर्ट नोट आए तो आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं। 6 1 2 3 4 5। अब इरप्शन ऑफ फर्स्ट परमानेंट मोलर 6 इरप्ट होता है, तो वो क्या करेगा? वो पहले तो थोड़ा मीजियल की ओर मूव करेगा, ठीक है। ये हमारा ई है, ये डी है, यहाँ 6 इरप्ट होगा। तो जैसे इरप्ट होगा वो आगे के दांत को पुश करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अर्ली मीजियल शिफ्ट। फिर वो क्या करेगा? पुश करेंगे तो वो प्राइमेट स्पेस होगी जो कैनाइन की डिस्टल, उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। 6 मीजियली मूव करेगा ई और डी को। तो जो स्पेस है प्राइमेट वाली सी और डी के बीच, लोअर में और अपर में बी और सी के बीच, यहाँ पे, तो स्पेस 6 जब इरप्ट होगा तो इस साइड पुश होगा मिसिल ओर, ठीक है, आगे की ओर पुश करेगा और स्पेस को क्लोज कर देगा, ठीक है। तो फ्लश टर्मिनल प्लेन जो है ना वो अभी मिसियल स्टेप में आ गया, ठीक है। पहले टूथ एंडिंग ऐसा था, अभी ऊपर का ऐसा है और नीचे का आगे है, ठीक है। तो ये मिसियल स्टेप में कन्वर्ट हो गया। अब ये प्रोसेस होगा तभी जाके हमारे जो फर्स्ट मोलर्स होंगे ना मैक्सिलरी, ठीक है, वो क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप में इरप्ट होंगे, ठीक है। तो क्लास 1 कैसा होता है? ठीक है, ये नीचे का दांत है, ठीक है।
तो जो कस्प होगा ना वो फोसा में आएगा क्लास 1 में, ठीक है। तो वो रिलेशनशिप को क्लास 1 बोलते हैं, ठीक है। और दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड अर्ली मेसियल शिफ्ट। ये क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप कौन सा, एंगल का जो क्लास 1 क्लासिफिकेशन है ना वो, ठीक है। मेसियो बक्कल जो कस्प है वो डिस्टो बक्कल ग्रूव में एंटर होगा, ठीक है, उसका कोइंसाइड या ऑक्लूजन रहेगा, ठीक है। अब इंसाइजर जब निकलेंगे तो मैंने बताया कि ए बी रिप्लेस होंगे 1 2 से, तो उसके बीच गैप आएगा, और वो गैप कितना होगा 7.6 mm है मैक्सिलरी में और 7 mm है मैंडिबुलर आर्च में, ठीक है। अब वो गैप कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा टूथ की जो स्पेस होगी ना उससे कम करके, ठीक है। फिर होगा अगली डकलिंग स्टेज। तो ये क्या है मैंने आपको समझा दिया है। कैनाइन जब इरप्ट होगा 3 वाला, तो 1 और 2 के रूट पर प्रेशर देगा, तो 1 और 2 जो होंगे ना उसके बीच में फ्लेयरिंग हो जाएगा। ये 1 है और ये 1 है, तो आप देख रहे हो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। आइडियली वो स्ट्रेट होने चाहिए, लेकिन एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे और डायस्टेमा बढ़ जाएगा दो दांत के बीच। इसको बोलते हैं ब्रॉडबैंड फोनोमेनन। अगली डकलिंग स्टेज, ये पूरे का पूरा टेम्पररी है, ठीक है। जब सारे के सारे दांत आएंगे कैनाइन फर्स्ट मोलर सेकेंड मोलर, तब जाके वो सब दांत अपनी जगह ठीक से शेप में आ जाएंगे। मिडलाइन डायस्टेमा है, डायस्टेमा का मतलब स्पेस, मिडलाइन डायस्टेमा मतलब ये इंसाइजर है, दूसरा इंसाइजर यहाँ है। तो ये स्पेसिंग जो होती है ना उसको हम ऐसा नहीं बोलते कि स्पेस बिटवीन टीथ, इसको बोलते हैं मिडलाइन डायस्टेमा, क्योंकि वो मिडलाइन में है 1 और 1 के बीच। अगर 1 और 2 के बीच में है तो खाली उसको बोलते हैं डायस्टेमा, मिडलाइन डायस्टेमा नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर लिवे स्पेस वो नांस ने दिया है, वो क्या है, तो सी डी और ई, उसका जो डायमेंशन होगा वो ज्यादा होगा 3 4 और 5 से। वो डिफरेंस को बोलते हैं लिवे स्पेस ऑफ नांस। और वो कितना है, तो अपर में 1.8 होगा और नीचे में 3.4 होगा, ठीक है, वो डिफरेंस। तो ये आपको खाली शॉर्ट नोट में आ सकता है या वन लाइनर में भी आ सकता है, तो आपको उतना याद रखना है। फिर टर्मिनल, ये ट्रांजिशन ऑफ मोलर ओक्लूजन रिलेशनशिप फ्रॉम मिक्स्ड टू परमानेंट डेंटिशन, ठीक है। तो ऐसा सोचिए कि जो ऊपर का दांत है और नीचे का दांत है, ठीक है। ये तो ई और ई है, 6 यहाँ पे ग्रो होंगे, ग्रो होने के बाद थोड़े मीजियल शिफ्ट करेंगे, और जो लिवे स्पेस होगी ये डी और सी, इसकी इसको कम कर देंगे, 6 का शिफ्ट होगा ना लेट शिफ्ट, तब जाके वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे थोड़े लॉजिक वाले भी इक्वेशन है और थोड़े समझने वाले भी है, और तो में इतना कुछ दिक्कत है नहीं। खाली आपको ये याद रखना है कि लीवे स्पेस क्या होती है, फ्रीवे स्पेस क्या होती है। फ्रीवे स्पेस तो हमने फर्स्ट में पढ़ा था। प्राइमेट स्पेस कौन सी होती है, उसके दूसरे नाम क्या है। तो आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि स्पेसेस इन डेंटिशन, मिक्स्ड डेंटिशन होगा या डेसिडियस डेंटिशन, उसके बारे में शॉर्ट नोट भी आ सकता है। तो आपको दोनों समझाना है, प्राइमेट और लीवे स्पेस, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, आगे फिर हम माल ओक्लूजन से चालू करेंगे। ये जो बेसिक हमने किया ना वो आपको थोड़ा याद रखना है, और अगर
आपको वन लाइनर में अभी काम आ सकता है और शॉर्ट नोट भी आपको आ सकता है। स्पेस इन या मिक्स डेंटेशन भी आ सकता है, क्राउडिंग भी आ सकता है। ऐसे फिर आपको तो अपनी तरह से वो लिख देना है। अगली डकलिंग स्टेज है वो भी आ सकता है, उसका दूसरा नाम भी पूछ सकते हैं ब्रॉडबैंड फेनोमेनन। तो ऐसे आपको अलग अलग क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। ये बुक मैंने आपको भेजी है, ये पढ़िए, आप आराम से नोट्स बनाइए। और हम आगे अगर कल पॉसिबल हो ना, तो हम कल फिर से लेक्चर लेने वाले हैं। उसमें हम आपको क्वेश्चन आंसर ही करवाएंगे। ये तो खाली थियरी करवा रहे हैं, हम आपको क्वेश्चंस देंगे और उसके आंसर भी डिस्कस करवाएंगे कल या परसों जब नेक्स्ट लेक्चर होगा ना तब। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना काफी है गाइस। गाइस आपने हमको इतना वॉच किया, थैंक्स फॉर दैट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर अवर इंटरेस्टिंग वीडियोस। इफ यू want to get the notifications at the earliest, please press the bell icon. It's okay that you have invested your time in watching this video. Thanks a lot for watching this. Have a nice time. Bye bye.